Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. This is our lecture that is related with the welded joints. Some of the things we have learned in our physical class. Now the remaining portion we will discuss in this online lecture. So the welded joints. A welded joint is a permanent joint which is obtained by the fusion of the edges of two parts to be joined together with or without the application of pressure and a filler material. The main thing is for welding, basically you require heat. Heat usually melts the base metal or the base plate and then the parts are joined together. Basically welding is categorized in two main techniques. In first, only the heat is applied to joining the base parts or the metal, and in the second, both heat and pressure are applied for the welding purpose or the welding application. Heat required for the fusion of the material may be obtained by burning of the gas or by an electric arc. आर्क वेल्डिंग से जो है वो आप सारे फेमिलियर हैं। आर्क वेल्डिंग के केस में आपके पास एक बिजली के इलेक्ट्रोड से जो है हीट जनरेट की जाती है बेस मेटल को मेल्ट करने के लिए। वाइल इन गैस वेल्डिंग तो गैस की बर्निंग की वजह से जो है वो हीट जो है वो पैदा होती है। The later method is extensively used because of the greater speed of the welding. ये जो आर्क वेल्डिंग है ये मोस्ट एक्सटेंसिवली आपके पास यूज होती है। Advantages of welded joints over riveted joints. The welded structures are usually lighter than the riveted structure because rivet का जो अपना वेट होता है उसकी वजह से जब आप एक riveted structure बनाते हैं तो वो structure जो है वो आपके पास heavy हो जाता है। The welded joints provide maximum efficiency. It could be 100%. That is not possible with the riveted joints. Riveted joint का जो डिज़ाइन का केस था जो हम इससे पहले 2 वीक्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर हमने देखा था जो एफिशिएंसी आती थी आपके पास रिवेटेड जॉइंट की, इट वाज ऑलमोस्ट 60 to 70%. ऑल्ट्रेशंस आर इजी इन केस ऑफ वेल्डेड जॉइंट। अगर आपके पास कोई हाई राइज स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपने वेल्डिंग करनी है, इट इज़ मोर इजीली। लेकिन अगर आप वेल्ड रिवेट की बात करेंगे तो आपको पंच करने पड़ेंगे होल एंड दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। As the welded structure is smooth in appearance, therefore it looks appealing. In welded connection, the tension members are not weakened as in case of riveted joints. So these are all the things that we have discussed in our physical class also. There are some disadvantages regarding the welded joints. First one is there is an uneven heating and cooling during the fabrication. ये बात हो रही है welding की. Therefore, the member may get distorted and additional stresses may develop. वेल्डिंग के केस में हीट की वजह से जो है वो दो पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, जिसकी वजह से आपके पास अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से डिस्टॉर्शंस आ सकती हैं आपकी बेस प्लेट के अंदर या जिन पार्ट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, और सेकेंडली स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं हीट की वजह से। इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन। आपकी एक अच्छी वेल्ड के लिए आपको एक स्किल्ड लेबर की जो है वो ज़रूरत है। Since no provision is kept for expansion and contraction in the frame, therefore that is possibly there is a possibility of crack development, and the inspection of welding joint is more difficult as compared with the riveted joint. फिर welding की अगर हम बात करें categories की, तो welding is basically classified into two groups. First one is the fusion welding, in which only the heat is applied for the welding purpose. And second one is the welding process that uses the combination of heat and pressure both. इसको जो है वो फोर्ज वेल्डिंग का नाम दिया जाता है। इसको भी हमने डिस्कस किया था कि फ्यूजन वेल्डिंग जो है इसके अंदर आपको थर्माइट वेल्डिंग आती है, गैस वेल्डिंग आती है एंड आर्क वेल्डिंग आती है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट so these are the explanation of the arc welding. And when we talk about the forge welding, फोर्ज वेल्डिंग में आपके पास स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग की जो टेक्निक्स हैं आपके पास आती हैं, जिसमें पहले आप पार्ट को जो है वो रेड हॉट गर्म करते हैं एंड देन यू विल अप्लाई प्रेशर, फोर्जिंग की मदद से जो है उनको जोड़ देते हैं। So I'm just moving this slide as we have covered this slide in the physical lecture also. So डिज़ाइन के केस में हमने दो तरह के जॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज द लैब जॉइंट एंड सेकंड वन इज द बट जॉइंट। लैब और बट जॉइंट के अंदर दीज आर सम सिंबल्स दैट आर यूज्ड फॉर द वेल्डिंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
This is the design case for the strength of a transverse fillet joint. This was the case that we discussed in the previous lecture, and this is the governing equation. The tensile strength for a joint, तो फिलेट जॉइंट होगा तो उस केस में आपके पास जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है दैट इज इक्वल्स टू थ्रोट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, वेयर द थ्रोट एरिया इज इक्वल्स टू throat thickness multiplied by the weld length, that is T into L, where T is equals to 0.707 S. So the governing equation is 0.707 S multiplied by L multiplied by sigma T. And if we have a double fillet joint, then we have 2 multiplied by 0.707, which is equals to 1.414 SL into sigma T. Strength of a parallel fillet joint. In case you have a parallel fillet joint, this is the area for a single parallel fillet joint, and if you have a double parallel fillet joint, so it would be multiplied by 2. But if you have two parallel weld joint and one transfer joint, so the governing equation would be like this: P is equal to 0.707 S multiplied by L1 into sigma T. Because of this transfer joint, here is sigma T. And when you are talking about the parallel fillet joint, in case of fillet joint, you have shear stress 1.414 S L multiplied by tau, and this is the allowance 12.5 mm that is added for the welding. That was the example we have solved. Here the parameters were given: the plate thickness, width, throat area, load is also given, value of the shear stress is also given. So you have to find out the length of the weld. So the equation is P is equals to 1.414 S into L into tau. Here the value of the load is given 1.414, value of throat thickness जो है S that is also given, length you have to find out, tau is also given. Here the value is 103 mm, and then this is the allowance you will add in 12.5 mm for the starting and stopping of the weld run. So the answer is 115.5 mm. That is the answer. So now we'll come to our major topic that we will discuss today, that is the special case of a fillet welded joint. This is the special case in which you have a base plate that have been placed vertically, and here is a circular rod that has been welded to it, and the rod having axis in the horizontal axis. More clear view is in the book. So I'll open it up. Here you can see this is the circular fillet weld section that is subjected to basically torsion. This is indicated torsion on this rod. This is the dia of the rod. Here this black portion is basically the weld bead. We'll consider it as a right angle triangle, and this is the basically you can say that the width which is equal to S, and this mid section is the throat thickness T. So consider a circular rod connected to a rigid plate. Here D is the dia of the rod, R is the radius of the rod, T is equals to the torque that is acting on this rod, S is the size of the weld leg that is equal to thickness of the plate, and T is basically small t here is not thickness, that is the throat area or the throat thickness. T जो है ये आपका ट्राइंगल के सेंटर से, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ट्राइंगल के सेंटर से जो है आपका जो थ्रोट एरिया, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कैसे लेते हैं। ये आपके पास S जो है, ये आपके पास ये वाली लेंथ है, ये प्लेट की थिकनेस के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अगर आप देखें तो ये प्लेट की थिकनेस के इक्वल है S जो है, ये पीछे की तरफ इसकी विड्थ है। ये जो आपके पास ट्राइंगल बन रही है, अगर आप B से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिराए एट मिड पॉइंट सेंटर D, ये जो आप वेल्ड बीड की, ये बेसिकली इसके थ्रोट की थिकनेस है, इसको हम T कह रहे हैं। चलें जी, ये आपके पास थ्रोट थिकनेस होगी, एंड J इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया for the weld section. वेल्डिंग के केस में when you consider the design data book, the polar moment of inertia for a circular fillet welded joint में उसकी जो इक्वेशन होती है आपके पास, that is pi t d cube by 4. ये आपके डिजाइन डेटा बुक से इक्वेशन आती है।
pi t d cube by 4. एज वी नो दैट shear स्ट्रेस होता है आपका जब भी पैरेलल फिलेट जॉइंट होता है आपका, क्योंकि इसमें पैरेलल फिलेट हुई है फिलेट हुई है सर्कुलर, तो वील कंसीडर द shear stress due to this torsion. So tau is equals to t r over j. t as it is, r आपके पास d by 2 है, j की जगह पे pi t d q by 4 की जो वैल्यू है वील पुट इट. जब हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, so the final expression came out would be 2 into t divided by pi t d square. This shear stress occur in the horizontal plane along the leg of the fillet weld. ये जो आपके पास shear stress इसके अंदर एक्ट कर रहा है, ये horizontal axis के अराउंड जो है वो एक्ट कर रहा है. The maximum shear occur on the throat of the weld is inclined to 45 degrees to the horizontal plane. जैसे हमने डिजाइन फिलेट के डिजाइन के केस में हमने कहा था कि जो थ्रोट थिकनेस होती है वो sin 45 ऑफ s होती है, यानी कि वेल्ड साइज का sin 45 होती है. तो थ्रोट थिकनेस t जो है दैट इज 0.707 s जो है वो इस तरह से निकलती है. सो इस t की जगह पे यहाँ पे हम इस 0.707 s को पुट कर देंगे. सो द वैल्यू केम आउट फॉर द मैक्सिमम shear स्ट्रेस इज 2t divided by pi, t की जगह पे 0.707 s multiplied by the d square. So the final expression for the maximum shear stress in case of circular fillet joint that is subjected to the torsion is equals to 2.83 t divided by pi s d square. This is the final expression that you will use in your design case. वापस आते हैं स्लाइड की तरफ. So this is the final expression came out. In first case that was the circular fillet weld joint. Next के अंदर चलते हैं जी. Next case is circular fillet weld joint when subjected to bending moment. पहले जो है हमारे पास एक सर्कुलर फिलेट जॉइंट का केस हमने डिस्कस किया था जो सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल फोर्स था. टॉर्जनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो ट्राई टू ट्विस्ट बेसिकली योर सर्कुलर रॉड. अब आपके पास बेंडिंग है कि ये ट्राई करेगा इसको बेंड करने की आपके रॉड को. इस केस को डिस्कस करते हैं बुक से, आपको जरा ज़्यादा क्लियर इसका व्यू नजर आएगा. अगेन दिस इज द वेल्ड सेक्शन, दिस इज S and this is the throat thickness, this is dia and this is bending moment. Second case is circular fillet joint when subjected to bending moment. Here D is the dia of the rod, M is the bending moment that is acting on the rod, S is the weld size and T is the throat thickness. डिजाइन डेटा के केस में डिजाइन डेटा बुक से जो मॉडुलस सेक्शन होता है आपके वेल्ड सेक्शन का, उसकी जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास पाई टी डी स्क्वायर बाय 4, दैट इज फिक्स्ड. अब इसको हम अपनी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में रखते हैं. बेंडिंग मोमेंट का जो आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस का फार्मूला होता है वो होता है m by z. सो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी जो है दैट इज इक्वल्स टू m by z. z की जगह पे ये इक्वेशन पुट करना है, m डिवाइडेड बाय पाई टी डी स्क्वायर बाय 4. इसको मोर सिंप्लीफाइड वर्जन इसका जो है वो आपके पास हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 4m पाई डी स्क्वायर बाय t. अगेन t की जगह पे 0.707 s की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे. सो द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन केस ऑफ अ सर्कुलर फिलेट जॉइंट, sigma b max is equals to 4m divided by pi 0.707 s multiplied by the d square. So the final expression is 5.66 m divided by pi s into d square. So this is the governing equation when a circular fillet weld subjected to a bending moment. ठीक हो गया. So this is the second special case of a weld joint. लास्ट केस को डिस्कस करते हैं. इससे अगला जो हमारे पास केस है, now special case of fillet welded joint, long fillet weld subjected to torsion. इसकी तरफ चलते हैं जी. अगेन बुक से चलते हैं तो जरा ज़्यादा क्लियर व्यू जो है वो बुक के अंदर नजर आता है. दिस इज द थर्ड केस ऑफ डिजाइन, लॉन्ग फिलेट वेल्ड सेक्शन दैट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन. ये आपके पास एक वर्टिकल प्लेट है. दिस प्लेट इज welded with this horizontal plate. Here on the left side we have a weld bed. ये पूरे का पूरा एक बेड बना हुआ है.
एंड हियर इज द राइट साइड यू हैव अ वेल्ड बेड। ठीक है जी। अलोंग द लेंथ जो है वो आपने इसके ऊपर ट्रांसफर जॉइंट जो है वो लगाया हुआ है। दिस इज द विड्थ ऑफ द प्लेट विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वेल्ड। ये थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ द प्लेट दैट इज इक्वल टू एस। एस क्या होता है आपके पास, वेल्ड लेग होती है। एंड ये जो टी जो है ये आपके पास क्या होता है, थ्रोट थिकनेस। Consider a vertical plate attached to a horizontal plate by two identical fillet welds as shown here and here. T is equal to torque that is acting on the vertical plate. L is equal to length of the weld, ये आपके पास है. S is size leg of the weld which is equal to the thickness, and T is the throat thickness. ये हम यहाँ से लेते हैं. Polar moment of inertia for weld section जो है, जब आप दोनों साइड के ऊपर वेल्ड करते हैं, that is equals to because of these two sides, अगर एक साइड पे होगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है that is T into L cube over 12. अगर आपके पास डबल वेल्ड जॉइंट हो तो ये आपके पास बन जाता है 2 multiplied by T into L cube divided by 12 which is equals to pi L cube over which is equals to T L cube over 6. It may be noted that the effect of the applied torque is to rotate the vertical plate about the z-axis. इस टॉर्क की वजह से जो है ये प्लेट जो है it will try to rotate. This rotation is resisted by the shear stress developed between two fillet welds and the horizontal plate. तो जब ये रोटेट करने की कोशिश करेगी ये वाली प्लेट जो है along the z-axis यूं, तो आपके पास जो है ये जो डबल आपने वेल्ड इसको लगाया हुआ है वो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा बेस प्लेट के साथ अटैचमेंट की वजह से. दिस इज अज्यूम दैट दीज हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेसेस में वेरी फ्रॉम जीरो एट द जेड एक्सिस एंड द मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द प्लेट. ठीक है जी. यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और यहाँ जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी. तो यूं आपके पास एक ट्राइंगल जो है वो स्ट्रेसेस की डेवलप होती हुई बन रही होती है. जैसे मैं भी आपको दिखाऊं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट. ये आपके पास लाइन आ गई स्ट्रेसेस वाली, तो यहाँ से प्लेट शुरू हो रही है, मिनिमम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसकी लेंथ यानी कि एक्सिस से अवे होती जा रही है, वहाँ पे जो है स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती जा रही है. तो इसके अंदर ये कहा गया. The variation of the shear stresses is analogous to the variation of the normal stresses over the depth L of the beam subjected to pure bending. So the shear stress formula is shear stress is equals to tau into T multiplied by R. R जो है इस केस में क्या होगा, L/2 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. उसकी जो इक्वेशन थी दैट इज TL क्यूब ओवर 6 है. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला इज T3T डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर. ये वाला T जो है ये आपके पास टॉर्जन का है, ये स्मॉल T जो है ये थ्रोट थिकनेस है आपके पास. तो इस थ्रोट थिकनेस की जगह पे 0.7 पुट कर देंगे. So the maximum shear stress that occur on the throat in this special case, the formula is 3T divided by 0.707 S multiplied by the L square, which is equal to 4.242 T divided by S into L square. तो ये तीन आपके पास डिजाइन के स्पेशल केसेस थे that we have discussed. अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं that we will try to solve. So a 50 mm diameter solid shaft, ये आपके पास एक solid shaft है जिसका जो diameter है that is 50, is welded to a flat plate by 10 mm fillet weld. So 10 mm fillet weld है, fillet leg का जो size S है that is 10 mm. Find the maximum torque. Torque की जो value है that you have to find out when the welded joint can sustain if the maximum shear stress value not exceeded than 80 megapascal. So there are three given parameters in this design case. First is die of the rod, second is S that is the weld leg, and third is the shear stress that is 80 megapascal.
In this design case, from these three parameters, we have to find out the value of the torque that is required for the welding. So T you have to find out. Here the formula is tau shear stress that is equal to 2.83 T divided by pi s d square. That was the first case of the fillet joint of the rod. ठीक है जी. So 2.83 आपके पास कांस्टेंट है, T you have to find out, pi कांस्टेंट है, s की वैल्यू जो है that is 10 mm, d स्क्वायर जो है वो आपके पास 50 mm है. ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे और आप निकाल लेंगे रिक्वायर्ड टॉर्क that is 2.22 किलो न्यूटन मीटर. तो ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू. स्ट्रेंथ ऑफ अ बट जॉइंट. इससे पहले जितने भी केसेस हमने डिजाइन के डिस्कस किए हैं दैट वर रिलेटेड विद द ओवरलैपिंग जॉइंट्स, यानी कि आपके पास लैप जॉइंट जो थे. अब जो है वो हम बट जॉइंट का जो केस है उसको डिस्कस करेंगे. बट जॉइंट्स आर डिजाइन फॉर टेंशन एंड द कंप्रेशन. क्योंकि आपके पास कोलिनियर फोर्सेस होती हैं इन केस ऑफ अ बट जॉइंट, उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम होती है, या तो वो पुल की हो सकती हैं या वो पुश की हो सकती हैं. इन केस ऑफ पुल आपके पास टेंशन हो रही होती है या टेंशन अप्लाई हो रही होती है ऑन द बेस प्लेट, एंड इन केस ऑफ पुश यू हैव द कंप्रेशन. कंसिडर अ सिंगल वी बट जॉइंट. ये आपके पास एक सिंगल वी बट जॉइंट है एंड दिस इज अ डबल वी बट जॉइंट. In case of a butt joint, the length of the leg or the size of the weld is equal to the throat thickness, which is equal to the thickness of the plate. So इस केस में जो आपके पास small t होता है that is equals to your s. Tensile strength of the butt joint, उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला होता है that is throat thickness multiplied by the length multiplied by sigma t. ये आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस है. L is the length of the weld. It is generally equal to the width of the plate. जो लेंथ ऑफ द वेल्ड होती है आपके पास वो प्लेट की जो विड्थ होती है उसके इक्वल होती है, बिकॉज अक्रॉस द विड्थ जो है वो आप इसको वेल्ड कर रहे होते हैं. अगर आपके पास डबल वेल्ड जॉइंट होगा तो ऊपर आपके पास एक थ्रोट थिकनेस बनेगी और नीचे बनेगी, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे. टी की जगह पे आपके पास आ जाएगा अपर थ्रोट थिकनेस T1, लोअर थ्रोट थिकनेस T2 मल्टीप्लाइड इनटू L. अगेन उसके आगे जो है वो स्ट्रेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है जी. इट मे बी नोटेड दैट साइज ऑफ द वेल्ड शुड बी ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट और इट मे बी लेस. ये आपके पास एक टेबल है, ये आपको वो मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड बताता है प्लेट की थिकनेस के इक्वल. तो डिजाइन के केस में ये आपके पास टेबल है 10.4 विच इज द रिकमेंडेड मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड. अगर आपके पास थिकनेस ऑफ द प्लेट जो है उसकी मिलीमीटर्स के अंदर रेंज 3 to 5 mm की है, 3 से 5 mm की जो भी प्लेट्स आएंगी उनके लिए जो मिनिमम वेल्ड साइज होगा वो 3 mm होगा. 6 से 8 की अगर होंगी तो उसके लिए मिनिमम साइज आपके पास 5 mm होगा. 10 से 16 की होंगी तो उनके लिए मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड 6 होगा. 18 to 24 mm की होंगी तो उनके लिए मिनिमम साइज जो है वो वेल्ड का 10 mm होगा. 25 से 55 mm की होगी तो उसके लिए 14 mm साइज होगा. एंड ओवर 58 mm आपके पास जो मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड होता है दैट इज 20. मैक्सिमम जो है वो आप प्लेट की थिकनेस के इक्वल जो है इसको रख सकते हैं. स्ट्रेसेस फॉर द वेल्ड जॉइंट्स. The stresses in the weld joints are difficult to determine because of the variable and unpredictable parameters like homogeneity of the weld metal, thermal stresses in the welds, changes in the physical properties due to the high rate of cooling. So इन 3-4 पैरामीटर्स की वजह से जो स्ट्रेंथ होती है आपके वेल्ड जॉइंट की उसको प्रेडिक्ट करना जो है वो ज़रा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अ रिवेटेड जॉइंट. The stresses are obtained upon the following assumptions. So there are some assumptions that are needed. First is the load is distributed uniformly along the entire length of the weld. ये assume किया जाता है for the design purpose. The stress is spread uniformly over its effective section. जो stresses होते हैं effective section के ऊपर uniformly distribute होते हैं. The following table shows the stresses for welded joints for joining the various ferrous metals with mild steel electrode under steady and fatigue reverse loading. ये आपके पास
वेल्ड की टाइप्स हैं, अगर आपके पास फिलेट वेल्ड हो, बट वेल्ड हो, टेंशन, कंप्रेशन और शियर का। अगर आपके पास बेयर इलेक्ट्रोड है और उसके ऊपर स्टेडी लोड लग रहा है तो उसकी वैल्यूज ये होंगी। फटीग लोड है तो उसके लिए वैल्यूज आपके पास ये होंगी इन जॉइंट्स के केस में। इसी तरह अगर आपके पास कोटेड इलेक्ट्रोड है तो उनके लिए ये होंगी। और अगर आप इस तस्वीर में गौर करें तो ये अंडर वाटर वेल्डिंग हो रही है। इसको हमने शील्डिंग और अनशील्डिंग के केस में डिस्कस किया था। जब आप अंडर वाटर करते हैं तो ऑक्सीडेशन का फिनोमेना नहीं होता, तो आपको वहां पे शील्डर इलेक्ट्रोड की या कोटेड इलेक्ट्रोड की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर द वेल्ड जॉइंट्स, जैसे आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, इसी तरह स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर वेल्डिंग भी होता है। ये इसलिए दिया जाता है, द रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड टू द वेल्ड प्रोड्यूसेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द जॉइंट। उसकी वजह से जो है जो वेल्ड सेक्शन होता है आपका पेरेंट मेटल के ऊपर जो है वो जरा वीक होता है। फॉर दैट यू नीड सम काइंड ऑफ अलाउंस दैट इज नोन एज स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। When parts are subjected to fatigue loading, the stress concentration factors are given. Mostly आपका जब स्टेडी लोड होता है उसके लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 रखी जाती है, ठीक है। तो जो आपके पास अलाउेबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वही आप पुट कर देंगे डिजाइन के लिए। लेकिन जब आपके पास फटीग लोडिंग हो रही होती है उस केस में जो आपके पास अलाउेबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी या आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू, बेंडिंग स्ट्रेस की जो भी वैल्यू होगी स्ट्रेसेस की, उसको आप इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, वो वैल्यू उससे कम हो जाएगी, फिर उस वैल्यू के ऊपर जो है वो आप वेल्ड सेक्शन को जो है वो डिजाइन करेंगे। अगर आपके पास रीइंफोर्स्ड बट वेल्ड है तो उस केस में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज 1.2, ये लेकिन ये लगाना आपने सिर्फ फटीग लोडिंग। टो ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट उस केस में 1.5 होगा, एंड ऑफ पैरेलल फिलेट जॉइंट दैट इज 2.7, एंड टी बट जॉइंट के केस में अगर आपके पास एक शार्प कॉर्नर है यू हैव दिस stress concentration factor equals to 2.0। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं हम, उससे आपको बेहतर इसका आइडिया हो जाएगा। So this is a design case for a weld joint. A plate of 100 mm wide and 12.5 mm thick is to be welded to another plate by means of a double parallel fillet weld। ठीक हो गया जी। The plates are subjected to a load of 50 kilonewtons। Find the length of the weld so that the maximum stress does not exceed than 56 megapascal। Consider the joint first under static loading and then under fatigue loading। अब इस डिजाइन के केस में आपको प्लेट की विड्थ दे दी गई है, दैट इज 100 mm, ये आपकी वेल्ड लेंथ के इक्वल होगी। थिकनेस ऑफ द प्लेट दे दी है 12.5 mm, दैट इज इक्वल टू योर एस के इक्वल होगी। फिर आपको लोड की वैल्यू जो है वो दे दी गई है, दैट इज 50 किलो न्यूटन, और उसके बाद आपको स्ट्रेस की वैल्यू दे दी गई है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो 56 मेगापास्कल से आगे नहीं जा रहा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो स्ट्रेस की वैल्यू दी है ये शेयर की है, टेंशन की है, बेंडिंग की है, टॉर्जन की है? तो वो हमें वेल्ड की टाइप से पता चलेगा। उसने हमें बताया कि डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। डबल पैरेलल फिल्ड है तो डबल पैरेलल फिलेट के केस में जो है वो आपके पास शेयरिंग हो रही होती है प्लेट्स की। तो ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ये शेयर स्ट्रेस की है, दैट इज टॉप 56 मेगापास्कल। आपके पास जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में आपके पास फार्मूला क्या होता है कि लोड यानी कि P इज इक्वल टू 1.414 S L इंटू टॉप। तो लोड की वैल्यू है हमारे पास 50 किलो न्यूटन, 1.414 आपका कांस्टेंट है, S की वैल्यू ये है 12.5, लेंथ ऑफ द वेल्ड हम यहाँ से निकाल लेंगे, एंड टॉ इज द शियर स्ट्रेस। तो जो लेंथ ऑफ द वेल्ड आपके पास आया है दैट इज 50.5 mm। इतनी तो हम ये डिजाइन कर रहे हैं कि इन पैरामीटर्स के लिए जो आपके पास वेल्ड की लेंथ होगी दैट वुड बी 50.5 mm। अब इसके अंदर हम वही स्टार्टिंग और ड्रॉपिंग का जो वेल्ड रन है वो ऐड कर देंगे इसमें, दैट इज 12.5 mm, दैट इज फिक्स्ड, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सो द वैल्यू केम आउट वुड बी 63 mm। ये उस केस में होगा जब आपके पास जो है स्टेडी लोड होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इस डिजाइन के केस को। प्लेट विड्थ जो है ये दैट इज 100 mm, ठीक हो गया, और जो हम लेंथ ऑफ द वेल्ड निकाल रहे हैं वो 63 है। तो फंडामेंटली या आप इसको कह लें कि यूनिवर्सली होना ये चाहिए कि प्लेट की जो विड्थ है उसी के इक्वल होनी चाहिए आपकी लेंथ की वेल्ड। अभी ये हमने देखा कि दीज टू वैल्यूज मस्ट बी इक्वल,
लेकिन हमने देखा है कि प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्लेट की विड्थ के इक्वल हो सकती है और मिनिमम जो है वो उससे कम हो सकती है, सब्जेक्टेड टू अ रेंज। तो अगर आपके पास स्टेडी लोड है तो स्टेडी लोड के लिए आप कम पोर्शन के ऊपर भी रख के इसको वेल्ड कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपका वेल्डिंग का मटेरियल भी बचेगा और वेल्ड टाइम भी बचेगा। लेकिन दिस इज ट्रू फॉर द स्टैटिक लोडिंग। अभी हम फटीग लोडिंग की तरफ चलते हैं, वहां पे देखते हैं ये वैल्यू किस तरह से वेरी होगी। सेकंड केस वाज द फटीग लोडिंग। फटीग लोडिंग में आपके पास जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है फॉर ए पैरेलल फिलेट जॉइंट दैट इज 2.7। तो 56 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू केम आउट फॉर द परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस दैट वुड बी इक्वल टू 20.74। इस वैल्यू के ऊपर जब आप डिजाइन करेंगे इस चीज को, सो द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर लगाने के बाद जो आपका वेल्ड लेंथ आएगी दैट इज 136 mm, और इसके अंदर ड्रॉप रन का जो टाइम है वो ऐड कर देंगे, तो दैट इज 136.2 प्लस 12.5, so the weld length is 148.7 mm। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि जब फटीग लोडिंग होगी उस केस में आपको वेल्ड लेंथ जो है वो बड़ी बनानी पड़ेगी ताकि जो है फटीग लोडिंग की वजह से जो है वो क्रैक जनरेट ना हो। तो आप प्लेट की विड्थ से भी थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। 100 mm इसकी विड्थ थी और हम 148 में चले गए, ठीक है, तो थोड़ा सा एड ऑन हो जाएगा। There are two examples 10.5 and 10.6 in the book। आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So that was all from today's lecture, and this is an interesting fact that more than 50% of the all man-made products required welding। तो welding की जो है वो आपके पास इतनी ज़्यादा जो है वो importance है, from the cars, planes and the trains that have traveled about in to the buildings that we have live and the work in, and even the laptops are using all these kind of spot welding and these kind of techniques। So design case for the welding जो है वो आज हमने ख़त्म किया है। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।